नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव बजाज यानी आर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। So Pradeep ji, Rahul Gandhi, the leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi met the Prime Minister today. Yes. Over the meeting for the appointment of the new CBI director. And in the meantime, I believe the Prime Minister also briefed him on what's been happening as far as Pahalgam is concerned, which I think is a great gesture, which is fantastic. The LOP, that is the leader of the opposition, being taken into confidence by the Prime Minister, which is absolutely fantastic. I hope this degree of cooperation goes on. And what we've been saying over here on this channel, Pradeep ji, अगर आपको याद हो, आपको तो याद ही होगा, सबसे पहले इस चैनल पे कहा गया था कि पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि पहलगाम जैसा कोई कांड कर दे। इसके पीछे चाइनीज हैं सर, बिल्कुल इसके पीछे चाइना है। और प्रदीप जी, जब हम बोल रहे थे, आपको याद होगा, पहले गणेश खानकर साहब थे, ही ऑल्सो, उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया बीजेपी वाले। और फिर उसके बाद हमारे अवधूत वाघ साहब थे, उन्हें क्या चाइना कुछ नहीं। आज की तारीख में इट इज वेरी क्लियर दैट द चाइनीज हैड दिस डन सो दैट द इंडियन रिएक्शन वुड बी स्विफ्ट, अनप्लान्ड एंड इंस्टेंट, सो दैट वी वुड वॉक इनटू एन एम्बुश, नॉट एन एम्बुश मिलिटरली बट एन एम्बुश इंटरनेशनली, so that there will be instability in India, so that all the industry which is shifting to India from China would stop. I think the Prime Minister has done a great thing by not doing anything. Sometimes, Pradeep ji, not doing anything is better than doing something. Or rushing into it. As you said, the Prime Ministers, people close to Prime Ministers already started leaking this news that we prevented a Chinese ambush. Yes. We actually, if we were going head on to a war, we were doing exactly what China wanted, and there was an ambush ready for us. That's right. Both militarily and very commercial things are concerned, where trade is concerned, we would walk in terms of international relations, in terms of our relations with the Middle Eastern countries, and the flight of industry from China to India. Bilkul, and the very fact that we are planning a strike slowly and very nicely. So we are working towards it rightly. And what's wrong? Even Sam Manekshaw took 7 to 9 months after Indira Gandhi told him. जी, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। Yes, yes. ये मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, सहारा के वक्त से बोल रहा हूँ, 2003 से, कि मोदी जी ने इंदिरा जी को बहुत करीब से स्टडी किया है। और ये मैं पहले से बोल रहा हूँ साहब, ये मोदी जी ने कभी नहीं कहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मोदी जी के बहुत स्टेप्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे मिसेज इंदिरा गांधी के थे। मैं बता रहा हूँ आपको। So I think he must have studied Mrs. Indira Gandhi and a measured response to East Pakistan. If you remember, right till the end, right till the time just before we infiltrated and we sent our forces across into East Pakistan, till that day Mrs. Gandhi was talking to the press and telling the international press, would you be kind enough to tell your Pakistani friends not to trouble and not to kill and rape the Bengali population in East Pakistan so much that we had to take care of them in refugee camps here. And the very next week, we were in East Pakistan, and within 12 days, Pradeep ji, 93,000 Pakistani soldiers had surrendered. And the same thing is happening right now. In every forum, our ministers are out there. In fact, it was just yesterday, the Jaishankar met the European Union and told them, we are looking for partners, not preachers. Don't preach to us what you yourself don't practice. Absolutely. So, in every forum they're going and they are trying to say that what happened here is wrong. This is, again, any kind of human rights. Killing people on the basis of religion is not acceptable. Terrorism is not acceptable. And the world has to unite over it. And we have been taking this in every forum. In fact, as Jaishankar Saab said, very, very clearly, and by the way, as Jaishankar Saab, people have forgotten, he is a protege of Dr. Manmohan Singh. Log bhul jate hain. Now, what did he say? Europe thinks its problems are the world's problems. Till such time as Europe starts to pay attention to the world's problems, why should we look at Europe's problems as our problems? We are not going to.
That's it. Now, at the moment with us, Pradeep ji, and I'm by the way, इसके पहले कि मैं अपने गेस्ट के पास जाऊं, दोनों सुशील व्यास जी और भरत सोनी साहब हमारे साथ हैं, मैं आपको बता दूं, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स. 5 डैम हैं साहब. ओके, लेट्स गो टू आवर गेस्ट, उनके सामने डिस्कस करेंगे. सुशील व्यास जी नमस्कार. आपकी आवाज नहीं आ रही व्यास साहब. नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर. जय भवानी, जय शिवाजी. जय शिवाजी. Bharat Soni Saab, lovely to see you as always. Absolutely lovely to see you. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you very much. तो नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी. नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार. Great pleasure. नमस्कार. Great pleasure having you on the show, sir. Great pleasure. Bharat Soni Saab, पहले आपके पास. Bharat Soni Saab, I am very happy with the response so far of the government of India. We have not rushed into things. Exactly what Mrs. Indira Gandhi did in 1971. We prepared. And then we went into Bangladesh, went into East Pakistan, converted into Bangladesh. Of course, उसके बाद क्या हुआ अलग बात है. People blame Mrs. Indira Gandhi for so many things, forgetting the fact, लोग ये भूल जाते हैं साहब कि उस वक्त भारत इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था. उस वक्त भारत के पास वो सब नहीं था जो आज है कि हमने 93,000 फौजी वापस कर दिए, सामने से कुछ नहीं लिया, because we were being sandwiched from both sides. From our friends the Russians on one side and the Americans on the other. अब सिचुएशन अलग है और ये मैं मान करके चलता हूँ. And very frankly, I think we should acknowledge the kind of platform, the kind of foundation which was laid by the previous governments, previous Congress governments and others. They've all helped Mr. Modi with the kind of strength that we have acquired today. Bharat Soni साहब आप बताएं please. राजीव जी नमस्कार. नमस्कार सर. पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो राहुल गांधी जी के साथ बातचीत की है और उनसे मिले, आज मिले, अभी मिले सर, आज मिले, थोड़ी देर पहले मिले, उसके लिए I think the meeting is still going on, sir. I think Rahul Gandhi ji has not left the PMO yet. अभी भी PMO में है सर. जी 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 जी. तो ये अच्छी पहल है और वी वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. Bharat Soni साहब, just a correction, small correction. Officially the meeting is for the appointment of the new CBI chief. Officially क्योंकि LOP हैं इसलिए, लेकिन जो खबर वहां से आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है. अब आप बोलें सर, प्लीज गो. बिल्कुल सर, कैसे भी हो और आज मैं क्या कुछ राजनीति की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा कि पीछे क्या हुआ था, वो क्या बोले थे, कैसे हुआ था, इसके बारे में बिल्कुल नहीं. एक अच्छी शुरुआत हुई है तो हम लोग आगे देखते हैं किस प्रकार से ये सब मटेरियलाइज होता है एंड हाउ इट फॉल्स इन प्लेस. एंड सर देखिए, हमारा देश जब कभी भी देश पे किसी पे दूसरी ताकतों ने हमला किया है या आंख दिखाई है, सारा देश प्रधानमंत्री जी के साथ, जो कोई भी प्रधानमंत्री उस समय रहा उनके साथ खड़ा हुआ है. ये हमारे भारतीयता की और इंडियननेस की, ये हमारे भारतीयता की एक निशानी है कि हम लोग ऐसे समय में कोई भी राजनीति न करते हुए हम हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उनके साथ खड़े होते हैं और वो जिस प्रकार से डायरेक्शन करते हैं उसमें हम उनका साथ देते हैं. तो भले सीबीआई के डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए बात हुई, चुनाव के इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में भी उनका सुना जाए, ऐसे मैं सोचता हूं. बट भरत सोनी साहब, आपका बोलना ठीक है. राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कहा कि आई एम विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रियंका गांधी जी ने भी कहा आई एम विद प्राइम मिनिस्टर मोदी. बट अजय राय का स्टेटमेंट जी, अजय राय जी यूपी कांग्रेस चीफ, आप कह रहे हैं कि राफेल आप किस लिए रखे, आप मिर्ची और नींबू बांधकर राफेल को रखे हैं, इस्तेमाल कभी कर रहे हो, पूरे देश देख रहा. तो और इसी चीज को पाकिस्तान मीडिया ने हाईलाइट कर दिया. देखो कि कांग्रेस लीडर कह रहे हैं कि राफेल आप सिर्फ नींबू और मिर्ची बांधकर वापस रखे हैं, इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. तो योर टॉप लीडरशिप टॉक समथिंग and then everybody down say something. It is continuously happening, Bharat Singh ji. So how Soni sahab, continuously happening. It's not one incident. One after the other is going on. Gap देने के बाद भी इस प्रकार से बात होना. How do you see that? सर देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी ने जो एक छोटा सा टॉय रफाल का दिखाया और उस रफाल के टॉय को वो नींबू मिर्ची बांधकर उन्होंने दिखाया. उन्होंने क्या एक प्रतीकात्मक दिखाया है कि ये हमारे जो
फाइटर जेट्स है वो क्या नींबू मिर्ची बांध के पड़े रहेंगे? सी जब साइंस ये उस समय जब डिफेंस मिनिस्टर ने नींबू मिर्ची बांधा तो हम लोग ने एक साइंस को न देखते हुए हम हमारी जो श्रद्धा है पुरानी श्रद्धा उसके तरफ ध्यान रख के हम लोग किया था। तो वो प्रतीकात्मक एक उनके तरफ पॉइंटर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये आप लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हो, ये भी उनका कहना नहीं था। लेकिन अगर उस रफाल के जेट को हैंगर में ही पड़ा रहेगा क्या, ऐसा वो पूछ सकते हैं। और सर अपोजिशन के नेताओं को, अपोजिशन के जो हमारे देश भर में स्टेट के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट्स है, उनको क्या इतना पूछना भी हक नहीं है? ये उनका मजाक नहीं बना रहे, वो एक प्रश्न पूछ रहे कि भाई ये कब चलेंगे? सर मजाक बना रहे हैं सर, विच इज ओके। बिल्कुल नहीं सर। सर विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्यों नहीं करें सर? सर मेरी बात सुनिए, बाला साहब ठाकरे क्या क्या नहीं बोलते थे यहाँ पे हर एक के बारे में। क्या है सर, हमें तो याद है, मेरे को तो, मुझे तो पता नहीं कितने इंटरव्यू दिए उन्होंने, मुझे याद भी नहीं है अभी तक। उन्होंने तो और छोड़िए, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी मजाक उड़ा दिया था, वो तो वैसी कोई बात नहीं। बट नोबडी कुड क्वेश्चन बाला साहब ठाकरे पेट्रियटिज्म, सीधी सादी बात है। लेकिन बाय द वे सुशील व्यास जी, ये सुनने वाली बात है, भरत सोनी साहब आप भी सुने, हमारे कई डिफेंस विशेषज्ञ जो हैं, अभी रक्षा विशेषज्ञ जो हैं, वो ये बोल रहे हैं कि क्या तुमने फौज जो रखी हुई है वो सिर्फ रिपब्लिक डे परेड के लिए रखी है, इस्तेमाल कब करोगे? पीपल आर आस्किंग दैट क्वेश्चन and I am very happy. Well, let me tell you very frankly, because I've been covering defense now for the last God knows how many years. I came into journalism, as I told you, in 1982. Since then, yes. I have been covering defense as one of my subjects. I was in Delhi. Sir, very frankly speaking, thank God we are not rushing into things. बहुत अच्छा हुआ हम लोग रश नहीं कर रहे। और इस चैनल पे व्यास साहब आप भी थे शायद उस दिन, मुझे याद नहीं है, पता नहीं थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं है। आई थिंक यू वर देयर। यहां पर हम लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान का में इतना दम नहीं है कि पठानकोट कर ले, इसके पीछे चाइना का हाथ है, हमने पहले दिन से ही कहा था। और सर दे वर यूजिंग एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेड बाय चाइना, दे वर यूजिंग हुआवे सैटेलाइट फोन्स अगेन विच इज बैंड इन इंडिया, मेड अगेन बाय चाइना। तो सर, और तीसरी बात है, बिफोर आई गो टू व्यास साहब, भरत सोनी साहब इस पे जरा रोशनी डालें। Coincidentally, and I had pointed this out at that time, very unfortunately the gentleman from the BJP did not take me seriously at that time, perhaps he didn't know. Sir, Apple Computers announced just 4.5 weeks prior to 22nd of April कि हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। Sanyo, Samsung, they are coming here. Hyundai, again they're already here and they're going to be expanding their facilities here. उसके अलावा सर Ford Motor Company which had packed up and had gone. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, Ford Motor Company ने पैकअप कर लिया था हिंदुस्तान से। उनका यार यहाँ पे नहीं है, they are back. They said this is a great market. The then CEO took a wrong decision and Ford is back in India. So are all the big brands of the world. They're coming as, and India will be a manufacturing hub. सीधी सादी बात है। अब सर ठीक है, आज की सरकार जो है हमारी, मोदी साहब की सरकार है, क्रेडिट लेना तो बनता है, जो बंदा अभी पावर में होगा वही क्रेडिट लेगा ना, सीधी सादी बात है। लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रियल बेस, जो IITs बने, जो बाकी सब बने, इंजीनियर्स जो हमारे बने, उन सबको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। व्हाट डू यू हैव टू से भरत सोनी साहब? आई थिंक दिस वाज प्लान्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर टू सी दैट देयर शुड बी इंस्टेबिलिटी इन दिस रीजन और एंड द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। What do you think, sir? Sir, I agree with Rajiv ji. I agree with you. Sir, देखिए इंडिया को चलो, for the first time Congress agrees with me. That's a first. जी बोलिए सर। Sir, I many time I agree with you, sir. It is not the first time agreeing with you, sir. Sir, you agree with me personally because you are a friend of mine. No. See, I am representing Congress party here. Whatever I say, it is on behalf of the Congress party. बोलिए सर, बोलिए, please. तो सर देखिए, हमारे देश को डिस्टेबलिश करने के लिए बहुत ताकतें हैं, क्योंकि क्या है सर, हमारा देश एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एक बड़ी पावर है। और सर देखिए, बहुत लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आपका देश खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर, हमारे पास आज 35 से 36 साल के जो युवक है, यानी एम्प्लॉयबल यूथ हमारे पास जो है 35 से 46 सर, 35 to 46 जी, 35 to 46 जो हमारे पास है, वो हमारे पास ऑलमोस्ट 60% है सर।
और इनको चैनलाइज करना ये हमारे देश का काम है। हमें इनको हिंदू मुस्लिम में नहीं भिड़ाना है, हमें इनको देश के जो मुख्य प्रवाह है उसमें लाना है। जी, और सर देखिए, हमारे देश को कोई नहीं हरा सकता है। हमारे देश एक बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमी है, हम लोग की जो परचेसिंग पावर है शायद किसी के पास नहीं है, इसलिए सबको अपने जो गुड्स है वो हमारे देश में बेचना है। और आज मैं ये बहुत जल्दी राजीव जी, ये बहुत जल्दी होगा इसके ऊपर कमेंट करना कि एप्पल और ये बहुत सारी कंपनियां जो इन्होंने आपने गिनाई, वो सचमुच हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी या सिर्फ असेंबली के लिए स्क्रू ड्राइवर लेके हमारे लोगों को फिट करवाएगी? सर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सर, हमको शुरू से एंड तक सारे प्रोसेस प्रोडक्शन के वो हमारे यहाँ होने चाहिए। Which is the reason why we took such a long time, by the way, the Ministry of Commerce took such a long time in granting Apple permission for Apple stores in India. They said, right from concept to the phone, everything has to be done here. That's what they said. And that deal was agreed to about a year earlier. And I must say, your friend, sorry sir, yes, I must say your friend Piyush Goyal was involved. He's a very good friend of yours. And we know that. We are one of the biggest exporters of all these mobile phones right That's now. right. And billions of dollars are being, let's go yes, to Sushil Vyas ji. So it is not just a hoax that hone wala. Chalu already काम है, Suri sir. सुशील व्यास जी, आपकी क्या राय है इसके बारे में? आपके क्या विचार हैं? क्योंकि हर एक कोई बड़ा इम्पेशेंट हो रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है लोगों का कि यार अभी तक एक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जब पिछली बार 2019 में फरवरी के अंदर इन्होंने अटैक किया था पुलवामा के ऊपर, तो दो या 3 दिन के अंदर हम लोगों ने बालाकोट कर दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह। आप कुछ बताएंगे सर इसके बारे में, कुछ रोशनी डालेंगे सर? सुशील व्यास सर। राजीव जी, आपकी बातें मैं नाम्बियार जी और आपकी दोनों की कार्यक्रम शुरू होने के पहले सुन रहा था, और उसके बाद भी आपने जब सोनी जी से बात कर रहे थे आपने उसका जिक्र एक बार पुनः किया कि जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं होने से, और देश चलाना है 140 करोड़ जनता को, 156 करोड़ देश के वासियों को अगर कोई हमें भविष्य की तरफ एकत्रित करके ले जाना है तो सोच विचार के कोई कदम उठाना चाहिए और देश हित में उठाना चाहिए। वो ऐसा भी ना हो कि हमको जाके बाद में पुनर्विचार करना पड़ जाए। तो आप लोगों की बातें मुझे अच्छी लगी, और मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि आपकी बातों से हमारे मित्र जो यहाँ कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी सहमत थे, तो उनकी सहमति से भी मैं सहमति करता हूँ। ये राजनीतिक विचारधाराओं को अलग रखने का समय है, ये इस समय देशवासी बन करके सोचने का समय है, और मुझे अच्छा लगा भरत भाई भी उसी दिशा में अपने विचार रख रहे थे। और ये समय है जब 156 करोड़ देश की जनता भाई बहनों को एक आवाज में बात करनी चाहिए, भूल जाना चाहिए कि हम किस राजनीतिक विचारधारा से बिलोंग करते हैं। एक ही विचारधारा इस समय है, देश और देश का हित और देश की सुरक्षा। देशवासियों का जिसने भी हमारे नरसंहार जो 22 अप्रैल को पहलगांव में किया है उसका बदला किस तरह से हम लें जिससे देश का स्वाभिमान भी बचे, देश के सामने उनको प्रत्युत्तर भी हम दे सके। लेकिन सवाल, अब आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उसका तरीका राजनयिक तौर पर तय होगा, उसका तरीका टीवी चैनलों के माध्यम से नहीं होगा, उसका तरीका किसी की खिलौने के ऊपर नींबू मिर्ची लगा देने के उकसाने मात्र से नहीं होगा, उसका तरीका विशेषज्ञ लोग लेंगे, उसका तरीका देश हित में होना चाहिए। इन बातों से मैं आपकी बिल्कुल सहमति अपनी रखता हूँ, और मुझे खुशी हुई आज कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी उसी बात को करीब करीब दिल से रखा, और मैं उनको भी साधुवाद करता हूँ। सुशील व्यास जी, मगर जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे साहब ने कहा कि कांग्रेस नेवर हैड द गट्स टू गिव पाकिस्तान अ बिफिटिंग रिप्लाई, कांग्रेस नेवर हैड द गट्स टू गिव पाकिस्तान अ बिफिटिंग रिप्लाई, एकनाथ शिंदे साहब ने कोट किया था, रीसेंट कोट। बिकॉज एक के बाद जो वर्जन आज अजय राय का वर्जन आया कि नींबू मिर्च वाला, उसे पहले सैफुद्दीन सोज बोले कि पाकिस्तान को वी शुड बिलीव ट्रस्ट पाकिस्तान व्हेन दे से दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड, फिर कोई विजय तिवारी जी कुछ और कमेंट कर रहे, सिद्धरामैया कुछ और ना। एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि मोदी साहब इसको, हाउ डू यू सी शिंदे साहब स्टेटमेंट? व्यास जी, हमारे सर्वोच्च नेतृत्व एकनाथ राव जी शिंदे ने पब्लिक डोमेन में अगर ये बात कही है तो उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक तथ्य रहे होंगे, और कम से कम 71 के बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई जहां पे कांग्रेस सरकार में रही और इस तरह की घटनाएं हुई, कांग्रेस द्वारा जो प्रत्युत्तर दिया गया वो जनता के सामने है, और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान को एक
जिसे हम कहते हैं उकसावा करने का, एक प्रोत्साहित करने का एक तरीका हो जाता है। अगर आप समय पर जवाब दे दें तो मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहता। मैं तत्कालीन सरकारों के प्रति जो रवैया रहता है, वो चाहे कोई भी सरकार में रहा हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि जैसे मैंने शुरू में कहा, ये समय नाम्बियार जी अलग अलग दलों का, विचारधाराओं का नहीं है। ये समय है देश हित में एक भारतीय बन करके अपनी बात को रखने का। एक भारत का नागरिक 22 अप्रैल का किस तरह से जवाब दे सके जो देश हित में हो और देश को विकास की तरफ ले जाए, देश के स्वाभिमान को भी बचाए, उसकी तरफ है। और अगर हमारे नेतृत्व ने कोई बात कही तो कोई कारण नहीं है मैं उससे असहमति जाहिर करूं। अब रही बात, आपने कांग्रेस के अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा, अजय राय ने क्या कहा, देखिए आप लोग अभी शुरुआत में कह रहे थे आपकी आपस की बातों में कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो मैं समझता हूं भरत भाई की पार्टी के इस समय सर्वोच्च नेतृत्व में आते हैं खड़गे जी के साथ ही, तो अगर उन्होंने कोई बात कही है कि हम प्रधानमंत्री के साथ में हर कदम के जो पाकिस्तान को जवाब देने का है उसमें है, तो कोई बात नहीं कि ये जो हमारे जो दूसरे मुख्यमंत्री या अजय राय जी की बात को हम इतना महत्व देकर के एक जो माहौल बन रहा है, जैसे आप ही ने कहा पीएमओ में इस समय राहुल गांधी जी की मौजूदगी और मात्र सीबीआई डायरेक्टर का चयन भी नहीं, देश हित में अन्य चर्चाएं भी वहां होगी। अगर उनका कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व देश हित में अगर प्रधानमंत्री के साथ कदम ताल करता है, कंधे से कंधा मिलाने के लिए चल रहा है, तो उनके दूसरे तीसरे दर्जे के जो नेता है वो क्या कहते हैं, उनको इतना अगर हम महत्व देंगे तो शायद उनको एक जिसे कहते हैं कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी जगह बनाने का मौका मिलता है। बाकी उनका कोई योगदान नहीं है। योगदान देने वाले अगर उनके नेता, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम प्रधानमंत्री के साथ हर कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे जो पाकिस्तान को जवाब देने का है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के उस सर्वोच्च नेतृत्व के द्वारा किए गए बयानों को हमको महत्व देना चाहिए। बाकी दूसरे तीसरा चौथा क्या कहता है वो कांग्रेस पार्टी के, मैं समझता हूं आज की तारीख में इन सर्वोच्च नेताओं के बयान के बाद ऑफिशियल राय नहीं हो सकती। Right, Bharat Soni sahab, I'll come back to you, but I've seen my dear friend from Hollywood, Mr. Ali Darwala sahab. Ali Darwala ji. Ali Darwala sahab is just here. Welcome to the show, sir. Looking good as usual. Oh my God, this guy looks younger every day. He looks so good, fantastic. Darwala sahab, thank you for coming. नमस्ते कांग्रेस के प्रवक्ता जी सर। सर जरा जोर से बोलें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि एंटी बीजेपी लोग हैं आप हमारे यहाँ पे, वो जान करके आपकी आवाज कम कर दी उन्होंने जी। अब बोलें सर। दारूवाला साहब, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग सर। दारूवाला साहब, अभी राहुल गांधी साहब और नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग चल रही है, अभी शायद खत्म हुई। आई थिंक राहुल गांधी जी has just stepped out as leader of the opposition. He had gone to the prime minister's office and the discussion officially was supposed to be on the appointment of the new CBI director, but I've been told that the prime minister also briefed him on what India is doing with regard to Pakistan and with regard to China. As we had said right from day one, the Chinese are involved in this, sir. Make no mistake. The Chinese and the Pakistani nexus, they had laid out a trap for us, and I must congratulate the Prime Minister and all his security advisors for not falling into that trap by attacking immediately. I think our response has been measured and it will be measured very, very slowly. I think Pakistan is going to feel the pain over the months to come. There is a possibility, as I've said earlier, 1.5 years or 2 years later, there will be no Pakistan on the map. Darwala sir, please go ahead. Nothing, Rajiv sir. Last week when I did the debate with you, where Pradeep sir was also there, Vyasji is witness to this. You had told me that I might have to resign for what I said, and this is really going to be very harmful for my career. I had told you caution. We need to take caution. We need to do lot of retrospection, because tomorrow, if something goes wrong, we will not be able to forgive ourselves. Lots of things will unfold, lots of things will unearth, and things will come in front of us, and then we'll be in a position. As I said, Honorable Prime Minister may not even be sleeping in the night, because the load on his shoulders is not funny. For him, every life, first the life of Indians, and then the life in the domain. In the international domain, he is very respected. Any knee-jerk reaction, it has been watched by the entire world. Entire universe is watching what our Prime Minister is doing right now. We need to be very careful. We are a responsible nation. Our nation is as big as a continent, where most of the countries are not even smaller than our states over here.
And as I said, lots of things are going to be unearthed over here. We need to be caution. As I said, it could be a total scheme of things that has happened over here. What we have been planning for last 11 years, now is the time to unfold and switch the button, and then here it flows what we have done for 11 years. मोदी जी ने क्या किया, ये राष्ट्र ने क्या किया, महाराष्ट्र में एकनाथ जी, अजित पवार जी की सरकार ने क्या किया, ये अब जनता जनार्दन के सामने आने वाला है, और आप, मैं और हम सब जो है ये इसको विटनेस करेंगे. इसके अंदर जो मैं कहता रहा हूँ हमेशा, और मेरी लैंग्वेज शायद लोगों को पसंद नहीं आती, सारे आस्तीन के सांप ये निकल के सामने आ रहे हैं. पहला एक हफ्ता जो एक बोलते ना, वो एक मगरमच्छ की आंसू और आज के उनके रवैये, सारे चीजें उभर के सामने आ रही है, और आप इसे देखते रहेंगे, और यू एंड मी एंड दिस प्रेस्टिजियस पैनल विल बी द विटनेस, एंड वी विल रिटेलिएट, एंड वी विल रिटेलिएट फ्रॉम नो रिटर्न. दारूवाला साहब, आज भारतीय जनता पार्टी ने सामने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जब नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी साहब वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा था. ही टोल्ड ही इज अ विलेज वुमन इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. नरेंद्र मोदी साहब तभी hit out at Nawaz Sharif. He said, you can't call our prime minister what you said. You can't insult our prime minister. He said that time नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई कह नहीं सकता. आज जिस प्रकार से कांग्रेस के जो मिस्टर राय है, उन्होंने कहा कि राफेल का क्या नींबू और मिर्ची लगाकर आप यहाँ पर रखे हो. सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि हम you should believe Pakistan when they say they are not. No, this is a direct attack on all these people. Though top leadership is with Prime Minister Modi, but जो talk lower level पे criticize कर रहे हैं, they reminded how Prime Minister Modi साहब ने react किया था when Nawaz Sharif had insulted Manmohan Singh. You think Congress should fall in line the same way Modi साहब had reacted then? I can assure you right now, people have grown, people have become matured, how to take criticism, and from an international platform, how to answer. It is very measured. And this measured answer, and as I said, Rahul Gandhi ji is maturing. He is understanding, though it has taken a little time for him, but he has matured. He is taking advice from his nurturers, his stalwarts are teaching him, and he is getting advice and he is getting nurtured. Down the line, as I always said, in Maharashtra, Uddhav Thackeray ji, Rahul Gandhi ji from Congress, they are not leaders that can be taken lightly. We have to take them seriously. As I said, we take every word of what Ajit Pawar ji and Eknath Shinde ji tell us, because these are the people, they are the local neta. जो आदमी 60 और 70 MLAs को जिता के ला सकता है, सर वो आदमी लाइट नहीं होते, वो लोग इतने हल्के नहीं होते. Likewise for Rahul ji, we take him not with a pinch of salt, we take him with utmost respect, and I'm sure they will also retaliate when the time comes. They are maturing, as so as the country is maturing, and we have got our aura in the diaspora, in the nation, as a very responsible country. जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर, दारूवाला साहब, लोगों में क्या है कि सब्र का बांध थोड़ा कम हो रहा है. सब्र जो है, the people are losing patience. Everybody says कि यार पुलवामा के बाद एकदम फटाफट सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी बालाकोट पे वगैरह वगैरह, तो ऐसा अब क्यों नहीं हो रहा? तो आई थिंक perhaps something needs to be done over there. The people need to be reassured that hey, listen, we are planning it out. बोलिए सर, दारूवाला साहब, please. As people are asking you कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, अटैक क्यों नहीं हो रहा, लोग जानना चाहते. भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते से मैं आपको एक बात, और अपने जनता जनार्दन जो हमारे व्यूअर्स है, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अब जो हो रहा है वो इतना बड़ा और इतना भयंकर है, क्या उसको रिटेलिएट करना, ये वॉर्स, ये लूजिंग ऑफ लाइफ से बढ़ के जो मोदी जी का एक षड्यंत्र था, संघ का विचारधारा जो थी, उन्हें ऐसा बोलते हैं ना, एक उनका जो बोलते हैं ना, ऐसी उनकी नाड़ी टाइट कर दी है ना. सब में पहले इंटरनेशनली उनका जो डिफेम किया वो मोदी जी ने किया, और उनके करतूतों ने उनको किया. वो लोग, दे आर गोइंग टू बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड. फॉरगेट India and forget Asia. I'll tell you how. Firstly, the water, and everybody is talking about it. That is all. It is in the domain of all the common citizens.
over here internationally, what Pakistan was doing, I really feel pity for the citizens over there as to the stupid decisions by the lawmakers over there are the common citizens who have to face. Nevertheless, they chose to be called a Islamic country. They asked for a division and they have gone over there and now they are regretting. जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक आदेश मांगा, उन्होंने अपनी खुद की बेटी को देश में नहीं लेके गया. She stayed in Bombay. I know the family very well. I happen to be studying about it. जो आदमी अपनी बेटी को वो देश में नहीं लेके जा सकता, यानी उनको खुद को पता है कि what am I leading, what am I asking, it is not for a long run. And nevertheless, in 70, 75, 80 years, you see them wither away, not only as a country, but as a global presence is going to diminish with no return. जी, दुरुस्त बात है. And by the way, the other thing also is, which is very important, and this is for everybody, सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, भरत सोनी साहब, व्यास जी और दारूवाला साहब, सुनने में ये आया है और ये बड़ी पक्की खबर है सर, जो पाकिस्तानी सीनियर ऑफिसर्स हैं ना आर्मी नेवी एयरफोर्स के, उनके सबके परिवार लंदन और टोरंटो भाग गए हैं सर. मजाक नहीं कर रहा सर, सबको भगा दिया गया है. अब बात आती है कि पाकिस्तान की जो जनता है उनको पूछना चाहिए अपने फौजियों से कि भैया ये पहलगाम का अटैक तुमने करवाया एंड वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. योर फैमिलीज हैव बीन टेकन टू सेफर प्लेसेस like London, Toronto, Montreal, Vancouver, and as far as we are concerned, you have left us right here to face the Indian Armed Forces. I mean, what is going on? What do you think, Bharat Soni Sahab? They've all run away. That Asad Munir, his whole family, Asif Munir, his whole family has been sent off to London. I mean, it's like terrible. What is going on here? Bharat Soni Sahab. राजीव जी देखिए, ये पाकिस्तान आर्मी के जितने भी लोग हैं, ये कूप मास्टर्स है. ये कोई बहुत बड़े कोई बहादुर या ऐसे लीडर लोग नहीं है. ये कूप करके सत्ता लेने वाले लोग हैं और इनका स्थान आयरन लेडी ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं आज तक, और जो वर्ल्ड में जिसको सबने माना, जिनके नेतृत्व को, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इनको उनकी जगह दिखा दी थी और उनको ऐसे जवाब दिया था जो वो जवाब समझते हैं कि कभी बाद में उठेंगे नहीं. तो उस प्रकार के हमारे देश में नेतृत्व है और उनका जो है वो एक फर्जी चीज पे ही बना हुआ देश है. तो उनके बारे में बहुत कुछ ज्यादा बात करके उनको वो डोमेन में भी लाना मैं ठीक नहीं समझता हूं. तो वो उनके बारे में चर्चा करना भी ठीक नहीं लगता है मुझे. सर ये देश खत्म. और जैसे शुरुआत की दौर में आपने कहा कि 93,000 सोल्जर्स हमने वापस दे दिए. सर अगर वो 93,000 उस समय पे हम लोग रखते तो उनको खिलाते क्या हम लोग? सर इंदिरा जी को आज सब जन क्रिटिसाइज करते हैं कि उस टाइम पे 93,000 वापस नहीं देने चाहिए थे, लेकिन सर बांग्लादेश बनाने पे हमें 5 पैसा अधिभार हमारी टिकट पे और सब पर पड़ा था. तो सोचो अगर 93,000 हम लोग रख लेते तो क्या परिस्थिति होती. तो उस समय पे वो बातें योग्य थी और उस टाइम पे जो हमारी लीडरशिप ने और उस समय के अपोजिशन ने सारे लोगों ने मिलके वो डिसाइड किया था. वो कोई अकेला डिसीजन इंदिरा जी का नहीं था. तो सर पाकिस्तान ये हमारे लिए कोई बड़ी चर्चा का विषय नहीं है. इनको इनकी जगह दिखा देंगे, हमारे लीडर्स भी दिखा देंगे, प्लस हमारी मिलिट्री भी दिखा देगी. हमारे डिफेंस फोर्सेस सक्षम है उनको उनकी जगह और उनके वो समझते वो भाषा में जवाब देने के लिए. भरत सोनी साहब, अरशद बदनी जमात उलेमा ए हिंद, यह किस प्रकार से he represents the Muslim community. Now इंडस ट्रीटी प्लान जो भी है, इंडस प्लान सरकार ने अगर बनाया हो, अरशद साहब कह रहे, बदनी साहब कह रहे हैं अमा यार आप ये पानी कहाँ ले जाओगे, ये तो नेचर है, वो पानी उस तरफ बहना चाहिए जिस प्रकार से बहना चाहिए, और हमारे नेतृत्व को प्यार और मोहब्बत अभी का, जब 26 से 27 हमारे लोगों को मार डाला है, आप ऐसे बात करते हो कि प्यार और मोहब्बत से लीडरशिप होना चाहिए. नो यू ऑलवेज ब्लेम फॉर तुष्टिकर. द कांग्रेस इज ब्लेम फॉर तुष्टिकर. हाउ डू यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ अरशद बदनी जमात ए उलेमा ए हिंद? सर अरशद बदरी साहब ने स्टेटमेंट जो दिया है वो
कॉन्टेक्स्ट में दिया है इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है। जी, लेकिन एक चीज तो है सर, मैं आपसे आप लोगों से जानना चाहता हूँ तीनों से, स्पेशली दारूवाला साहब, क्योंकि दारूवाला साहब मुस्लिम है। आई एम सो सॉरी फॉर सिंगलिंग यू आउट, आई होप यू डोंट माइंड। सर क्या है कि हमारे दारुल उलूम देवबंद के जो लोग हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड, दे इशू फतवाज ऑन एवरीथिंग, हर चीज पे फतवा इशू कर देते हैं सर। दारूवाला साहब आपको याद होगा, हर चीज पे फतवा, इस पे फतवा, उस पे फतवा। सर आज तक इन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ, कोई दहशतगर्दों के खिलाफ कोई फतवा इशू नहीं किया। दारूवाला साहब इसके पीछे क्या वजह है, जरा बताएंगे सर आप? अली दारूवाला साहब, मैं क्या बोलता हूँ, इसको इतना इम्पोर्टेंस और उनके फतवे को इतना महत्व आप लोग नहीं क्यों पूछ देते रहा हो? हूं सर, मैं पूछ उसका रहा हूं। सुनता कौन, उनका मानता कौन, उसको इम्प्लीमेंट करता कौन है? आप मुझे समझ में नहीं आ रहा राजीव agree सर, with आप you. एक नॉन स्टार्टर। No, why am I asking this is, I'll tell you why I'm asking this. सुनिए ना मेरी बात, सर मेरी बात तो सुनो। वो सलमान रश्दी पे फतवा, इस पे फतवा, अरे उनका मानता कौन? उनका सलीम खान सुनता पे फतवा, सलीम खान साहब पे फतवा, जो सलमान खान के अरे पिताजी आप हैं। तो इनको बारे में डिस्कस करके, वो जो एक रैट से, वो एक जो नहीं क्या यहाँ पे एक छुए है जो पाकिस्तान में भी छुप के बैठे हैं, उनके बारे में मैं आपको एक बात स्पष्ट कहता हूँ। बोलिए सर। क्योंकि मैं नहीं कहता था, आपने कहा कि आप मुस्लिम हैं, तो अब मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद गुजरात, विद पंजाब एंड कश्मीर। आपने कभी गुजरात में देखा है कुछ होते हुए, कोई वहाँ पे स्ट्रीट्स पे आ रहा है क्या, वहाँ पे कोई टेरर अटैक हो रहा है? आपने पंजाब में देखा है ऐसा कुछ होते हुए? नहीं। कश्मीर में क्यों होता है सर? ऐसे सर फिरे लोग कश्मीर के अंदर भी है, ये वानी जैसे, ये मुफ्ती महबूबा जैसे, 370 हो आ जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, ऐसे पागल लोग हैं जो कहते हैं सर बात। इसके वजह से ये सब जो है ना, ये घास को पानी डालने का काम ये कश्मीर में होता है। आके महाराष्ट्र में ऐसा करके बताओ, यहाँ पर भी मुस्लिम है ना, पर यहाँ के मुस्लिम देशभक्त है, यहाँ के मुस्लिम देश के लिए अपनी जान देने वाले लोग हैं। ऐसे हमें शायद वहाँ पे कुछ अभी भी मुट्ठी भर के गद्दार वहाँ पे अभी तक बैठे हैं करके ऐसे कांड को अंजाम होता है। जिस दिन ये मुट्ठी भर लोग को पकड़ के ना, नाउ आई रियली हैव टू कंट्रोल माय इमोशंस एंड Please माय don't, टंग ओवर please don't, please speak I freely. have to control my tongue. Why? जिस दिन ये मुट्ठी भर लोगों को आप एक शिक्षा जब देंगे, We like it when you are, ये when सब you lose ऐसे- control. ये जी। सब ऐसे कांड और ऐसे प्रकार होना बंद हो जाएंगे। But you know, I want to know, दारूवाला के साहब, बारे में तो आप भले ही अच्छा है कि आप इनको मीडिया में, आपके मीडिया में इतना वक्त मत दीजिए। नहीं नहीं, बट दारूवाला साहब, ओवैसी साहब कहते हैं कि आप अंदर घुस के मारिए और मारकर वहीं पर रहिए, हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए, आप उस जगह को कैप्चर कीजिए। एक है ओवैसी साहब जिस प्रकार से कह रहे हैं, ही ब्लेम्स पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग, आईएस, पाकिस्तान इज आईएसआईएस। तो एक है ओवैसी साहब और दूसरे है मदनी साहब, अरशद मदनी साहब, जमात उलेमा ए हिंद। तो हाउ डू इवैल्यूएट, यू हैव सीन ऑल दिस, आप आरएसएस से जुड़े हो, बीजेपी से जुड़े हो, दोनों को कैसे इवैल्यूएट करते हैं एट दिस पर्टिकुलर टाइम? Pradeep sir, you may be aware what is happening. Now I don't want to discuss. जब अके इंडिया का टेम्पो यूनाइटेड है, ऑपोजिशन यूनाइटेड है, मेजॉरिटी, आई एम सेइंग मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, 99.99% Muslims are united over here. Their agony we all share like any other non-believer. Why I say non-believer? क्योंकि यहाँ पर बिलीव नॉन बिलीव का सवाल ही नहीं आता है। यहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आप जो देश में रहते हो वो देश से वफादार बन के रहो। मगर 0.001% सर फिरे लोग हैं जो ये बेवकूफ़ी करते हैं और ऐसे लोगों को पनाह देते हैं। मगर ये जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एजुकेशन आ रहा है, लोगों के हाथ में लैपटॉप, मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, एवरीथिंग, इंस्टाग्राम सब पहुंचा है। जो यहाँ पे एक माहौल आज देश में हो रहा है ना सर, these are the fagins, these are the fagins of the rabbits and the rats that are coming out. I hope and pray to God every life in this country is important, and over here Modi ji is very highly tense. Over here we have got this opposition on our side, we have the arms arsenal on our side, we have to use it very carefully, we have to have a very registered and a very controlled attack if at all it has to happen. But I'm still saying lots of enemies will emerge and we will witness in near few days. We may not even have to fire a single bullet. The enemies will come and surrender
एंड दूध का दूध पानी का पानी। दुरुस्त ये बात। जो 26 लोग शहीद हुए ना सर, इनका बलिदान ये व्यर्थ नहीं जाएगा। करेक्ट। व्यास जी जिस प्रकार से मिलिंद देवरा साहब ने पूरे देश को समझाया सुनाया, एकनाथ शिंदे जी वॉज ऑन द ग्राउंड श्रीनगर में थे, लोगों के साथ इंटरैक्ट किए, प्लेन भरकर पहले लोड उन्होंने भेजा, लोगों से मिले, उनके दुख दर्द समझा। एक शिंदे साहब है और दूसरे यूबीटी से बोलना, मनोबल तोड़ना। उद्धव बाला साहब ठाकरे उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त पर जब देश में रहकर सेवा करना चाहिए, कोई लंदन में जाके मौज कर रहे। हाउ डू यू सी दैट कंपैरेटिव स्टेटमेंट, व्यास जी? अब जहां तक सवाल नाम्बियार जी यूबीटी का है, कृपा करके उनके बारे में चर्चा करके उनको वापस हम लोग लेमलाइट में लाना भी नहीं चाहते। वो अपना जीवन जी रहे हैं, लंदन में जिए, फ्रांस में जिए, जहां जिए, क्योंकि अब वो उनके लिए कोई स्थान राजनीति में बचा नहीं है, ये जनता ने तय कर लिया। अब जहां तक सवाल एकनाथ राव जी शिंदे का और मिलिंद देवड़ा का है, जो हमारा उभरता हुआ युवा नेतृत्व है इस देश का, वो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमला हुआ, एकनाथ राव जी ने ये नहीं देखा कि मुझे क्या करना है, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। वो तुरंत चार्टर्ड फ्लाइट पकड़े, कश्मीर पहुंचे, वहां के हमारे महाराष्ट्र के विशेषकर जो भाई बहन फंसे हुए थे, उनको किस तरह से मिलना जुलना, उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, और 580 के करीब लोगों को उन्होंने चार्टर फ्लाइट्स के माध्यम से या मुंबई या जो उनका गंतव्य स्थान है भेजने का काम किया। तो उन्होंने उसका कोई पब्लिसिटी नहीं ली। उन्होंने कहा बाला साहब ठाकरे ने जो हमें सीख दी है, 80% समाज कार्य, 20% राजनीति। तो एक्चुअली ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव वाज गिरीश महाजन, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि गिरीश महाजन ऑफिशियली है तो मैं नहीं जाऊंगा। ये एजे शिवसेना प्रमुख उनका कर्तव्य था, वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। महाराष्ट्र के हमारे भाई बहन जो वहां पे फंसे हुए थे, उनको वहां से रेस्क्यू किया गया, उन्होंने भेजा, और उसका कभी उन्होंने क्रेडिट लेने की सार्वजनिक डोमेन में काम भी नहीं किया। उन्होंने कहा ये मेरी सेवा थी, मैंने की, मेरे भाइयों बहनों महाराष्ट्र भाई बहन जो वहां फंसे थे उनके प्रति मेरा काम था। अब तो मैं आपका दूसरी चर्चा सुन रहा था, हमला करना चाहिए। एक तो मैं कह दूं कि शुरुआत में कि ओवैसी जी, महबूबा मुफ्ती जी की जो इनकी भाषा जो इस समय है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर ये भाषा पहले हो जाती तो देश कहीं और आगे बढ़ जाता, देश में और कोई हमारे भाई बहन इकट्ठा रहते। लेकिन जो भी है, आज हम साधुवाद देते हैं उनको, ओवैसी जिस भाषा में आज बोल रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती भी जो कैप्टन मार्च में निकलती है, तो अच्छा लगता है कि देश इस समय कम से कम एक राय में एक तरफ बढ़ रहा है कि हमें हमारे नरसंहार जो हुआ 22 तारीख को, उसका बदला लेना है। अब जो आप कह रहे हैं कि हमला करने की बहुत जल्दबाजी लोगों में है, ऐसा नहीं है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार जो कदम उठा रहे, जिसका कुछ जिक्र हमारे भाई दारूवाला साहब भी कर रहे थे, मुझे बताइए कि पख्तून के नेता जिस भाषा में अपने ही लोगों को क्या कह रहे हैं उसको कि सुना रहे हैं या समझा रहे हैं, क्या वो एक बदला लेने का तरीका नहीं है? बलूचिस्तान के जो नेता हैं, जो जिस भाषा में वहाँ बात कर रहे हैं, वो अपने ही नेतृत्व, अपनी ही सेना के खिलाफ जो बात कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो बदले का एक तरीका नहीं है? तालिबान के लोग अफगानिस्तान के नेता आकर के हमारे नेताओं से मिलते हैं, वो पाकिस्तान को धमका रहे हैं, तो क्या ये बदला लेने का तरीका नहीं? देखिए, बदला लेने का तरीका राजनीतिक रूप से और राजनयिक रूप डिप्लोमेसी होती है। जैसे पहले इंदिरा जी ने, जिसका नाम आपने भरत भाई ने भी लिया, और हम उनको सम्मान करते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो यहाँ तक कहा कि वो एक दुर्गा के रूप में थी। तो उसी तरह से हम भी कहना चाहते हैं कि आज जो मोदी जी जो कर रहे हैं, जो इंदिरा जी ने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो वो देख रहे हैं कि पीओके समेत पख्तून और बलूचिस्तान वगैरह, कहीं पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान 5 हिस्सों में नहीं बढ़ जाए, वो भी एक बदला लेने का तरीका हो सकता है। लेकिन उसके लिए सारी राजनयिक तरीके से हर चीज सार्वजनिक डोमेन में डिस्कशन नहीं हो सकता। जब वो चीज हो, जैसे आप ही ने कहा राजीव जी कि इंदिरा जी 71 के वार के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कह रही थी, पाकिस्तान को समझा रही थी कि ये करिए करे, और एक हफ्ते के अंदर एक्शन हो गए। तो हो सकता है किसी दिन आप भी देखेंगे वन फाइन मॉर्निंग हमारी भी एक्शन हो जाए, और कहीं पाकिस्तान इस बार, पिछली बार 2 भागों में बटा, इस बार 5 भागों में बढ़ जाएगा, और उसका कुछ तरीका है, और वो उस तरह की कुछ हलचल हो रही है। क्योंकि अभी मैं आपसे बात करते करते टीवी स्क्रीन पे देख रहा था, होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जाहिर की है सारे राज्यों को कि 7 मई के दिन एक मॉक ड्रिल की जाए कि अगर वार होता है तो किस तरह से नागरिकों को सुरक्षित रख सकते हैं, नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए। पूरे देश के पैमाने पर 7 मई के दिन MHA ने एक एडवाइजरी जारी की है कि मॉक ड्रिल के लिए। तो ऐसा नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकारी के स्तर पर गंभीरता के साथ कदम उठ रहे हैं, और हमें खुशी है कि
कि हमारे विपक्ष के साथी भी सरकार के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है, उनसे अपनी बात को रख रहे हैं और सार्वजनिक रूप से एकता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी जी जो भी कदम उठाएंगे उनके साथ है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं कि ये समय आया जब हमने भारतीय संस्कृति जो समय पड़ने पर भारत की सम्मान के साथ खड़ा होना, यही हर भारतीय का कर्तव्य है, वो हम उसको निभा रहे हैं। दुरुस्त बात। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है भरत सोनी साहब, that for the first time since 1987, then later in 2009, we had built 5 dams in and around the Indus River water system, that is Jhelum and Chenab. और इन 5 डैम्स को, जिसको बोलते हैं ना सर, there is something called flushing, that is you need to remove the sediment. As you know, every reservoir, artificial reservoir collects a lot of silt. तो desilting के लिए बहुत वो कोई ड्रेजर नहीं भेजते। What happens is you flush out the water. Yes. तो 1987 से आज तक ये डैम्स जो हैं 5 हैं, इनको फ्लश आउट नहीं किया गया था। अब वो शुरू हो गया सर। एक तो चिनाब का डैम, सलाल डैम, दूसरा बगलिहार डैम और उसके अलावा 3 और डैम हैं। इन तीनों डैम से पानी जो है वो फ्लश आउट कर दिया गया है और उनका जो भरने का टाइम होता है यूजुअली अगस्त होता है। एंड वी ऑलवेज इन्फॉर्म पाकिस्तान अबाउट 2 months इन एडवांस के हम लोग ये करने वाले हैं। इस बार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी सर। और दूसरी चीज क्या होने वाली है, साथ में और रिजर्वायर्स बन रहे हैं इंडस रिवर वाटर सिस्टम के साथ में। सर मैं आपको बता दूं, व्यास साहब और दारूवाला साहब, सर जम्मू में एक चीज पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर शेयर्स द मैक्सिमम बॉर्डर विद जम्मू, नॉट विद कश्मीर। ये भी आपको बता दूं, जम्मू के साथ मैक्सिमम बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है सबसे ज्यादा जम्मू में है। सर आपको मालूम है जम्मू के लोग तो खुशियां मना रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इंक्लूडिंग ओमर अब्दुल्ला कांग्रेचुलेटेड हिज एंटायर कैबिनेट कि अब पानी और बिजली की किल्लत नहीं होगी जम्मू कश्मीर में। इंडस का पानी इधर आएगा, चनाब और झेलम का पानी हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। सर जम्मू के अलावा पंजाब का जो सतलुज रिवर बेसिन है ना, आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट, आई हैव गॉन ऑल थ्रू आउट ओवर देयर इन द सतलुज river water basin. There are huge, there's a huge amount of elephant grass over there. You have to go right through the boats. I don't know, I'm sure you must have seen these documentaries on Discovery Channel where they show you the Florida Everglades, you know, crocodile country. Our own Florida Everglades are in Punjab, right next to the border. वो पूरा का पूरा पानी सर पाकिस्तान में जाता है। और आपको मालूम है मजे की बात क्या है, पाकिस्तान is not able to use that water. अब वो सतलुज का पानी इधर आएगा सर, और we will use it in Haryana and we will use it in Rajasthan. Sir, this entire thing जो दारूवाला साहब ने अभी बात कही ना, कि जो 26 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उससे बहुत बड़ी चीज एक होने वाली है कि ये जो 4-5 हमारे स्टेट है ना, इनमें पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। एंड राजस्थान, भरत सोनी साहब, राजस्थान will actually become the green state. Their entire forest will return as is mentioned in the Rigveda. ऋग्वेदा में जो मां सरस्वती का जो रिवर बेसिन है, उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट थे, they are going to be resurrected. This is what is going to happen. कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में सोनी साहब, प्लीज। सर स्वागत करता हूं मैं इसका, और ऐसा होना भी चाहिए। जो सूखा पड़ा है राजस्थान, उसमें अगर हरा भरा हो जाए तो सर जैसे पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, उस प्रकार से जो अगर हरित क्रांति लाई जाए तो हमारे देश में काफी अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है अनाज का। और वो अभी हम लोग 156 करोड़ है, तो उनको भी हमको देखना है। तो उन्हें अगर ये हो सकता है तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और इस आवकार्य है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ हमारे महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी अगर कुछ सोचा जाए, जैसे कि मराठवाड़ा और ये इन है जो सूखे है वहां पर, तो वहां भी अगर जो डैम्स, चेक डैम्स जो सूख गए हैं, उसके तरफ भी कुछ ध्यान दिया जाए तो शायद मेरे महाराष्ट्र में भी हम लोग ला सकते हैं। और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। सर उसके लिए अलग शो करना पड़ेगा, सर उसके लिए अलग शो करना पड़ेगा सर। मुंबई के सिविक एमेनिटीज के लिए कब से बोल रहा हूँ, आप कर नहीं रहे सर। जी मैं करता हूँ सर। अभी सर बीच में एक सेकंड सर, प्रदीप जी एक सेकंड, ये पहलगाम का अटैक हो गया ना सर, आपने करवा दिया पहलगाम का अटैक, मैं क्या करूँ उसके बारे में। लेकिन लेट मी गो अक्रॉस टू दारूवाला साहब। No, I just want to ask- सर प्लीज प्लीज
उसके बाद आप आए भरत सोनी साहब से बात करें सबसे। दारूवाला साहब, आई वुड लाइक योर रिएक्शन। दारूवाला साहब, जब यहाँ पे महाकुंभ चल रहा था ना, तो मैंने यहाँ पर बोला था, बिकॉज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, प्रदीप जी एंड माइन, द वाटरमैन ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा था कि राजीव जी, प्रदीप जी, एक बात याद रखिए, 5 साल के अंदर अंदर मां सरस्वती का निर्मल अविरल रूप आप वापस देखेंगे इलाहाबाद में। त्रिवेणी में त्रिवेणी होगी, तीसरी वेणी भी होगी, यानी तीसरी नदी भी होगी, सरस्वती। मान लीजिए सर। दारूवाला साहब, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मां सरस्वती को पुनर्जीवित करने वाले हैं सतलुज और झेलम का पानी इस्तेमाल करके। अब आप बोलें सर दारूवाला साहब, प्लीज। Yeah, see, working, you know where I come from over here. There is a myth, as I said, these people are blessed. They have a connection. और ये लोग 80-90 साल से जो काम कर रहे हैं ना, इतना फाइन ट्यून काम, इतना प्रैग्मेटिक काम, पिन पॉइंट एक्यूरेसी काम जो चला है ना सर यहाँ पे। और मैं कहता हूँ मोदी जी जो है ना, इज जस्ट अ टूल, ही इज जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट। There is a larger force, there's a larger picture, and there is a divine force that is working of making India in 2047 Viksit Bharat, Sarvashreshth Bharat, and the most prosperous country in the world. इसका जो काम चला है ना, ये सिर्फ कोई knee-jerk reaction, ये कोई योगा योग और ये कोई करिश्मा नहीं है सर। एकनाथ शिंदे जी ने इतना बड़ा डिसीजन लेना, 50 MLAs को लेकर यहाँ पे आके ज्वाइन करना, और एकनाथ शिंदे जी की मेहरबानी से, उनकी मेहनत से, लाड़की बहन योजना से वापस इतनी बड़ी नंबर से जीत के आना, फिर महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल आपके इंडिया में देना। सर ये कोई योग, ये कोई करिश्मा और ये कोई बाय द वे कोई फ्लू काम नहीं हो रहा है। लेकिन दारूवाला साहब, उनको सीएम भी तो नहीं बनाया आपने। सर सुनिए ना, उसके ऊपर हम आपके साथ में वापस एक शो करेंगे, वो क्या है, क्यों नहीं बनाया, उनके वास्ते हमारी पार्टी में जो मान सम्मान और जो फ्यूचर है उसके ऊपर में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। शो के ऊपर नहीं बात कर रहे यहाँ पर। वो आदमी इज लार्जर देन सीएम। आज एकनाथ शिंदे जी के बारे में मैं आपको कहता हूँ, आपने पूछा ना सर, इन अ लाइटर नोट, मेरे मुलुंड के बाजू में थाने के है वो, जोक अ मॉकरी आउट ऑफ दिस serious situation, but I will not let this happen over here. No, I'm not making a mockery. सर सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना सर, सुनिए ना, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ ना मैं। सर दारूवाला साहब, मैं आपको खाली एक ही पूछ रहा हूँ सर, आप नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े? बोला ना मैंने मराठी में थोड़ी बात किया। एकनाथ शिंदे जी हमारे फेस है, तो फिर उनको बनाना चाहिए आपने। उनका ऐसा नाम नहीं भूल सकते। आपको सुनने में शायद, मीन्स इंग्लिश में बात करो सोनी जी, आपके समझ में आएगा। We cannot give, और मैं आज ये डंके की चोट पे कहता हूँ, एकनाथ शिंदे जी ये जनमानस, लोकमानस और लोक नेता है। He is above a post of a CM. That man has worked for every small individual. Over here, I am saying things to come in his heart to take such a big step. ये कोई योगा योग और करिश्मा नहीं है, ये is towards a larger benefit, towards a larger happening, and towards India becoming a supreme power. सर टॉप 5 में है, टॉप 3 में, आज इंडिया में 2047 में टॉप कंट्री बनाने में ये सारे लोगों का योगदान है। ये जो बलिदान है ना सर, पे गिरा है ना सर, इसमें से आप क्या उगेंगे आप देखिए। व्यास जी, यू वांट टू रिस्पोंड टू भरत सोनी जी? भरत सोनी को बहुत चिंता है कि एकनाथ शिंदे जी सीएम बनना चाहिए, नहीं बना। भरत सोनी नहीं सर, प्रदीप जी, व्यास जी को लेट व्यास जी रिस्पोंड टू। मैं समझता था कि जिस विषय को लेके हम गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे उसमें राजनीतिक चर्चा न करें तो अच्छा है, लेकिन राजनीतिक चर्चा अगर भरत भाई ने कर दी है तो ऐसा है राजनीति भरत भाई कि इस समय त्रिवेणी की बात चल रही थी, इस समय हमारे महाराष्ट्र में त्रिदेव के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार चल रही है। ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के कितने चेहरे थे, शरीर एक था। तो उसी तरह से अजीत पवार, शिंदे जी और फडणवीस जी में हम कोई फर्क नहीं देखते। वो जब एक बात में बात करते हैं, एक राय में बात करते हैं। और जो आपने सीएम बनाने की बात की, ऐसा है कि ये बात तय थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसी समय सम्माननीय अमित शाह जी ने एक बात कही कि चुनाव के बाद हमारे निर्वाचित विधायक
जो एक संवैधानिक तरीका है, बैठेंगे, अपना नेतृत्व तय करेंगे और जो नेतृत्व वो तय करेंगे उसको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया जाए, यही संवैधानिक प्रावधान है। तो जिसकी संख्या भारी, तो ये तो उसमें कोई सार्वजनिक रूप से कई बात है। तो हमारे ये बात अगर मैं कहता, आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिवसेना शिंदे के कोई प्रवक्ता कहते हैं, ये दुख प्रकट करते हैं, तो बात हमको तो कोई दुख नहीं है, हमें तो खुशी है कि प्रचंड जीत जो महाराष्ट्र की जनता ने दी, ये तीनों हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम बड़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने जो हमारे पे ये जो विश्वास दिखाया है, हम उस विश्वास की कसौटी पे खरे उतरेंगे। आज ये समय नहीं है भरत भाई इन विषय पे चर्चा करने का। किसी दिन अगर किसी विषय पे चर्चा करनी हो, मैं 50 मिनट नहीं 50 घंटे चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आज हम लोग एक गंभीर मुद्दे पे देश की सुरक्षा के लिए, देश के हमारे देशवासियों के साथ जो हत्या हुई और उस पे विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कम से कम ऐसे मुद्दों को आज व्यास जी थोड़ा एक्सटेंशन आपको 1-2 मिनट इसमें चर्चा कीजिए, बिकॉज चर्चा पूरे महाराष्ट्र में है कि जैसे कोल्ड वॉर एंड महायुति, कोल्ड वॉर एंड महायुति, बिकॉज अजित पवार जी ने ऐसे लोग को साथ लिया जो शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे जी के कैंडिडेट्स के खिलाफ लड़े थे। सतीश पाटिल हो गए, गुलाबराव देवकर हो गए, दिलीप सोनावणे हो गए, दिलीप पाग हो गए। ये सब एक रूल था कि हम इनको नहीं लेंगे जो हमारे कैंडिडेट्स के सामने लड़े। तो क्या एवरीथिंग विल बी ओके? बिकॉज नाम्बियार जी, अब करीब 4.5 साल तक तो कोई चुनाव है नहीं महाराष्ट्र के अंदर। कौन लड़ा, कौन हरा, कौन जीता, उसको कितना कौन साथ में लेता है, तो ये आप मान के चलिए कि 2029 के पहले कोई चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा का होने वाला नहीं है। ये पत्थर की लकीर है। अब उस और जहां तक रहा सवाल, 4.5 साल बहुत लंबा समय होता है वर्तमान राजनीति के अंदर बदलाव लाने के लिए और उठा पटक करने के लिए। 2.5-3 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार बन जाएगी। 30 जून 2022 हमने बड़ी सफलता के साथ चलाई। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम पुनः महाराष्ट्र की जनता का विश्वास करके इतना प्रचंड बहुमत लेके आ जाएंगे। 4.5 साल बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखना चाहिए कि वो इंतजार करें। अबे कोई खतरा किसी ने नहीं, शिवसेना के किसी व्यक्ति ने रिएक्शन दिया है क्या उसके बारे में? गुलाबराव पाटिल, मैं जिम्मेदार हूं उस बात को जवाब देने के लिए। अब वो कौन किसको लेता है क्या लेता है ठीक है, लेकिन वर्तमान सरकार पूरी मजबूती से अपने महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का 2029 अक्टूबर तक सेवा करेगी। उसके पहले कोई चुनाव नहीं है सर। व्हाट अबाउट द फंडिंग सर? ये मान के चलिए सर। एक छोटा सा शब्द एक फंडिंग पे भी बोल दें, लाडकी बहन योजना। मैं आ रहा हूँ सर, भरत सोनी साहब आपके पास आ रहा हूँ। व्यास साहब फंडिंग पे भी जरा बोल दें, क्योंकि 2 मंत्रालयों से पैसा लिया गया। अभी जो लेटेस्ट ट्रांच जो दिया गया है लोगों को, तो उस विषय के बारे में भी जरा बोल दें सर। आई होप द सेंटर इज सेंडिंग फंड्स। राजीव जी सर, 27 जून 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा में बजट के माध्यम से ये लाडली बहन, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की घोषणा हुई। कहा गया था 1500 रुपया पर माह दिया जाएगा और उसके कुछ मापदंड नक्की किए गए थे और सरकार उस पर कायम है। सरकार उसको विधिवत लागू किए हुए है, कहीं उसमें व्यवधान आया नहीं। हमारे जो घोषणा पत्र हुई उसके बाद तीनों दलों की जो महायुति में है उन्होंने कहा हम इसको 21 रुपए तक ले जाएंगे, लेकिन वो हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से हमारी एक घोषणा है। हम निश्चित रूप से कटिबद्ध है, हम वचनबद्ध हैं कि 1500 को 2100 तक बढ़ाएंगे, लेकिन एक समयबद्ध है उसको बजट उसका प्रोविजन होना चाहिए। बजट प्रोविजन करके उसको हम जैसे ही उचित माहौल आर्थिक रूप से बनता है हम करेंगे। अब रही बात आप जो जिक्र करना चाहते हैं, संजय सिरसाट जी वगैरह ने जो बयान दिए हैं, वो देखिए अब सरकारी स्तर पर एक मंत्री अपने मंत्रालय के बारे में क्या कहता है उसका राजनीतिक प्रवक्ता जवाब नहीं दे सकता। उसका जवाब जो सरकार का प्रवक्ता है, चाहे जो मंत्री होगा वो देगा। लेकिन जहां तक सवाल युति का है, जो नाम्बियार जी ने जिस बात को छेड़ा, नाम्बियार जी और राजीव जी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आपके माध्यम से महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को जो मैंने पहले कहा था वो फिर कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहे। जो विश्वास और प्रेम आपने अक्टूबर को हमको नवंबर में 22 के चुनाव के नतीजों के माध्यम से दिया है, वो हम उस पर खरा उतरेंगे। ये तीनों दलों की सरकार मजबूती से महाराष्ट्र की सेवा एक रह के करेगी और बड़ी सहजता से करेगी, आपके इरादों के अनुसार करेगी, आपके फेवर में करेगी, जनता के हित में करेगी, जनता की जन विकास के कार्यों के लिए करेगी, जन कल्याण के माध्यम से करेगी। इसलिए कहीं कोई आपस में झगड़ा नहीं है, ये युति बड़ी मजबूती के साथ एक है। हम लोग एकता के साथ महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। भरत सोनी साहब, द रीसेंट एक्सेप्टेंस, कैन यू से एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट बाय राहुल गांधी जी, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि
1984 riots, I take the responsibility. Operation Blue Star was a mistake. How do you see this? Because आपके UBT सब praise कर रहे हैं कि देखो how gracious and great was Rahul Gandhi's. But was it right if Rahul Gandhi accept these mistakes, 1984 riots and Operation Blue Star? सर देखिए, राहुल गांधी जी ने जो शब्द बोले हैं वो ये कहा है कि 1984 के जिसके एक सिख ने उसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आप क्या चाहते हैं कि 1984 के लिए आपने माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, और वो भी किसके रिस्पॉन्स में था कि राहुल जी के पहले यूएस के दौरे में जो था कि सिख लोगों को टर्बन बांधने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उसके ऊपर बात थी। तो सर देखिए, राहुल जी ने ये कहा कि मैं आपसे ओनरशिप लेना अगर किसी ने सीखना है तो राहुल जी से सीखे। He has owned it। उन्होंने कहा कि उस समय पे मैं राजनीति में नहीं भी था, फिर भी मैं उसकी जवाबदारी लेता हूं कि वो नहीं होना चाहिए था। ऐसा कौन सा नेता ले लेगा सर जवाबदारी? आज आप बताइए, आज के माहौल में हर किसी का दोष दूसरे के ऊपर थोपने वाले नेता जहां पर है, तो मुझे मेरे नेता राहुल जी पे बड़ा फक्र है, गर्व है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट करके कहा कि मैं उसकी माफी मांगने को मैं ये तैयार हूं और वो नहीं होना चाहिए था। सर माफी तो मांगी ना सर, राजीव गांधी जी ने भी मांगी बाद में, और डॉक्टर बिल्कुल सर, सर 2002 के लिए भी लोगों ने माफी मांगनी चाहिए। सर मांगी थी, ऐसी बात नहीं सर, मांगी थी, but that's a separate issue. All I'm saying is that as far as Rahul Gandhi is concerned, he's, as Daruwala Saab said just now, he has matured into a very serious politician now. Sir, I did not object to Daruwala Saab. He is telling he is matured. He was already matured, but people were making fun of him, and people were, जो मीडिया में जो वो लोग जो झूठा उनके खिलाफ डालते थे, उसके कारण उनको he was made out to be a person who is otherwise not. Right. Daruwala Saab, I want to ask you recent statements of Farooq Abdullah. उमर अब्दुल्ला तारीफ कर रहा है, स्टेट एक है, स्टेट मोदी साहब के साथ है, पर फारूक अब्दुल्ला प्रश्न उठा रहे कि 4 ओवरग्राउंड वर्कर जो टेररिस्ट थे अब तक 1.5 लाख आर्मी पकड़ नहीं सके, पुलिस पकड़ नहीं सकते, ये अमित शाह के अंडर है। आगे जाके बोले कि जो हाउसेस ऑफ टेररिस्ट जो डिमोलिश किया वो गलत है, नहीं डिमोलिश करना चाहिए, वो उन्होंने थोड़ी बनाया था, उनके परदादा ने बनाया था। तो एक से एक स्टेट, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ऑल कश्मीरीज आर नॉट टेररिस्ट। तो क्या ये धीरे धीरे एक डिसेंटिंग स्टेटमेंट आप देख रहे हो? व्हाई इज दिस डिसेंटिंग स्टेटमेंट्स कमिंग? इज इट बिकॉज सम डिले इन द एक्शन अगेंस्ट टेरर? दारुवाला साहब, Rajiv sir, Pradeep sir, if you remember, just my opening statement, फलस्तीन के सांप सब उगर के सामने आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ वो गोली कहाँ से चली, हुआ कहाँ से, चाइना रिस्पॉन्सिबल है क्या? मैंने कहा 3 राज्य है, मगर वहाँ पे अपराइजिंग, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा है। कश्मीर में क्यों हो रहा है? आप थोड़ा सोचिए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। एट दिस पॉइंट इन टाइम में और कोई दूसरा एक यहाँ पे भगदड़ इंडिया में नहीं मचाना चाहता हूँ, मगर आप दिमाग से सोचिए ये बातें उधर से क्यों आती हैं। आर्टिकल 370 के टाइम में किसी ने वहां पर कहा था कि खून की नदियां बहेंगी, क्या हो गया? ये तो मैं कह रहा हूँ सर, सीए एनआरसी होना चाहिए था ना, मालूम पड़ता था यहाँ पे कौन यहाँ पे अधिकृत रह रहा है, कौन यहाँ पे वहां से बॉर्डर अक्रॉस आके यहाँ पे रह रहा है। क्या सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? आप सीएम बने हो, आप बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने करना चाहिए, आपने क्या सिर्फ एस्टेट्स बनाना चाहिए क्या? तो मैं आपको कह रहा हूँ उधर भी एक But CAA and NRC was a Congress idea. It came during Rajiv Gandhi's time. जी बोलिए सर। प्रतीक सर, जो हो रहा है एक एक चीजें सामने उजर के आएंगी, और फिर जो कलेक्टिव एक्शन होएगा ना, कलेक्टिव एक्शन आप देखते रहेंगे। जस्ट लिसन, वेट एंड वॉच। Over here, the government, the Sangh, the military are not fools. Everything is going to unearth, and you're going to see what is actual. Enemy is lying within and across. How they are sabotaging. I am so happy you're saying it. Country, you will see it one day. Now, can I ask you a cannot give question? you more than this. Can I ask you a question now? Sir, ever since 26/11 happened over here in 2008, we've been saying, both Pradeep ji and I, and in separate fora, all of us have been saying the same thing, that 26/11 could not have happened without local help.
We've been saying it from day one. In fact, we interviewed a couple of people, a couple of girls actually. If you want, I'll send you the link. At that time, who said that they had seen Kasab 1 week earlier and they had partied with him. They actually said that. And both the girls were shot at in Leopold Cafe. और उनका कुछ नहीं हुआ सर. I was hoping कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और 2014 में मोदी जी की सरकार आई उधर, 2014 में देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार आई उधर, मैं ये उम्मीद कर रहा था दारूवाला साहब कि जो कवर अप किया गया उस वक्त, और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्ड यूज कर रहा हूं, कवर अप किया गया, वो खोला जाएगा. तो वो कब खुलेगा सर? ये तो पहलगाम का अटैक हुआ कश्मीर में. मैं 26/11 की बात कर रहा हूं सर. 26/11 में 6 गधे, गंवार, अनपढ़, वायाद किस्म के लोग जिनको एबीसी तक नहीं आती, एबीसी छोड़ दीजिए, जिनको आलिफ बे पे ते टे से हे जीम खे दाल डाल जाल भी नहीं आता, उनको ये कहा जा रहा है कि उनको जीपीएस दे दिया गया, उस वक्त का जीपीएस 2008 का, और उससे विद इन मिनट्स दे वर एबल टू आइडेंटिफाई ये कामा हॉस्पिटल है, ये अपना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ये ट्राइडेंट होटल है, ये शबद हाउस है और ये ताज है. सर आप मुझे बताइए दारूवाला साहब, डोंट यू थिंक दैट इन्वेस्टिगेशन शुड बी रीओपन्ड एंड द होल थिंग शुड बी डन इन डिटेल एज टू हु वर द पीपल हु हेल्प्ड देम? दारूवाला साहब. Agreed, there is a iota of truth what you are saying, Rajiv sir. I normally know that you will not on your prestigious channel speak so loosely, and as you have been working, I have seen in your capacity who all you have interviewed, backdated, आपका क्या stalwart है, आप क्या काम करते हो मुझे मालूम है. 100% there is iota of truth in what you are saying, but right now what lies in front of us, जैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं ना, ये अर्बन नक्सल्स जो यहाँ पे जी रहे हैं ना, जो यहाँ का पानी पी रहे, जो यहाँ का नमक खा रहे, सर वी नीड टू डील विद दैट, एंड दैट इज व्हाई आई स्पीक विद सो मच venom and anger. That is why Ali Daruwala's words are not taken so lightly, because without evidence I do not talk. I said that यहाँ पर सब कुछ सामने निकल के आने वाला है, and all these people will be taught a lesson. Hopefully, God willingly, not a bullet will be fired, but everybody will be punished, Pradeep ji. and that time is not far. व्यास जी, how do you see this फारूक अब्दुल्ला statement? Because उमर अब्दुल्ला ने जो प्यार और मोहब्बत के पैगाम बोले, हर कश्मीरी बाहर सड़क पर आकर निकले हैं, देश के साथ है, टेरर के साथ, टेरर के खिलाफ है, और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मनोबल तोड़ने वाली बात, 1.5 लाख आर्मी cannot catch 4 overground workers, houses of the terrorists need not be demolished. ये उन्होंने बना, तो ये कैसे महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि ऑल कश्मीर आर नॉट टेररिस्ट? हाउ डू यू सी दैट? इज द डिसेंट स्लोली कमिंग आउट इन द ओपन? हाउ डू यू सी व्यास जी? नाम्बियार जी, आपने ही अपने रिमार्क में कहा कि उनके पुत्र वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, और अगर उनके पिता फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, अब किसका बात माना जाए? जो मुख्यमंत्री है उसकी मानी जाए, या उनके पिता जो भूतपूर्व कोई जमाने में मुख्यमंत्री रहे उसकी बात मानी जाए? तो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की जनता की जो जवान होती है, उसको जवान हम जो वर्तमान मुख्यमंत्री हम समझते हैं वो वहां का नेतृत्व करता है, वो जो कह रहा है वो जम्मू कश्मीर की आवाज है. अब वो महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सारे कश्मीरी देश के द्रोही ने. किसने कहा कि सारे कश्मीरी देश के द्रोही हैं? किसी ने नहीं कहा. बीजेपी के या शिवसेना के या कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने ये बात तो नहीं कही कि हमारे सारे कश्मीरी भाई बहन देश के द्रोही हैं. कुछ कश्मीरी भाई बहनों ने जिस तरह से मदद की है हमारे उन यात्रियों की, पर्यटकों की उस दिन, वो सारे पब्लिक डोमेन में है. तो किसी ने ये भी नहीं लांछन लगाया कि सारे कश्मीरी देश के द्रोही हैं. अब रही बात दूसरी, आप राजीव जी आपने जो बात कही कि 26/11 के बारे में, जी देखिए ऐसा है कि 26/11 के जो आप जिन भावनाओं को आप व्यक्त कर रहे हैं, हर देश का वासी, विशेषकर मुंबई का हमारे जैसा, जो उस समय मुंबई में था और उसने अपने आंखों से सारी चीज को देखा, वो चाहता है कि सच्चाई निकल के आए. वो 6 लोग जो यहाँ आए थे, वो आपने जिन शब्दों में उनको बयान किया, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ. लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से तवर्रुप राणा जो है उसको अमेरिका से लेके आई है, जिस तरह से NIA उनकी जांच कर रही है, कोशिश की जा रही है कि एक्चुअल तह तक पहुंचा जाए. 26/11 के पीछे कौन कौन लोग हैं, उस लिंक का पता लगाया जाए.
भारत सरकार निश्चित रूप से उसमें गंभीरता से काम कर रही है और उसका उदाहरण हमारे सामने है कि राणा के रूप में उसको अमेरिका से यहाँ ला करके उसके ऊपर गहन दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। उसकी जांच हो रही है, एनआईए और अन्य जांच एजेंसियां उसमें कर रही, और भी लोग अगर उसमें होंगे उनको निश्चित रूप से लाया जाएगा। और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उसकी कोई, जहाँ तक क्रिमिनल लॉ है, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। 32, 33 साल के बाद लोग पकड़े गए और उनके ऊपर आरोपित करके केस चले हैं। और तो आप निश्चिंत रहिए, अगर 26/11 के ऊपर भी इस देश के हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और सोचने के माध्यम से वर्तमान सरकार को निर्देशित करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आगाह करना चाहिए, बल्कि देश के हर नागरिक को हक है कि वो जो सरकार पावर में उससे निर्देश कर दे कि ये 26/11 की जो घटना हुई है उस पर तहकीकात करे, और उसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। राणा को लाना वहां से अमेरिका से विस्थापित करके ये पहला कदम है। इसी तरह से अन्य गंभीर कदम उठाए जाएंगे। 26/11 के सच्चे दोषियों को भी जनता के सामने ला करके कानून प्रथा के अनुसार उनको सजा दी जाएगी। Vyas Saab, and I hope all those people responsible for the cover-up, including senior police officers and politicians, will also be brought to book. They are part of the same universe. 26/11 का कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, जिसका नाम आ गया नहीं आ गया, उसको पताल में भी अगर है तो उसको पता लगा के सजा दी जाएगी। और जो वो ऐसी सजा दी जाएगी कि भविष्य में कोई कसाब जैसा व्यक्ति वापस रेकी या जीपीएस फलाने के माध्यम से मुंबई या देश की किसी भी गलियों में आने की हिम्मत न कर सके। Right, thank you gentlemen, thank you very much. Darwala Saab, great pleasure as always listening to you. Bharat Soni Saab, always a pleasure. Thank you so much sir. Vyas ji, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए। Thank you very much. Thank you gentlemen, thank you very much. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। भारत माता की जय। Thank you. भारत माता की। Well, I hope it really happens, what Vyas Saab was saying. I hope it really happens, because I'll tell you what happens is that we leave an investigation halfway. That shouldn't happen. Let's be very clear. People who were responsible in 26/11, there are quite a few who have still not been brought to book. बिल्कुल। और उन सब लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले उनका चेहरा जो है पब्लिक के सामने आना चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए। I think that needs to be done. Yes, I think this, what we're discussing, Tawahur Rana, this will change. And the very fact, if the investigating agencies are saying that he's not cooperating, that means they've got huge leads and they don't want to divulge it. That's right. I hope they don't. I hope they only divulge it. And they're already working on the ground. Because if अगर बोल दिया होता कि he's revealed everything, तो आधे लोग भाग जाते हैं यहाँ से. जी, दुरुस्त बात. Definitely. So I think they're getting to the root. And what you said, perfectly right. They want local support, and the truth needs to be investigated. And Pradeep ji, let me tell you another thing, and I've been saying this now for some time. लोग जो हैं इसको मानते नहीं है, लोग कहते हैं कि ये होगा नहीं। मैं आपके सामने एक बार फिर बोल रहा हूँ, वो डेविड हेडली जो है ना, वो was a CIA asset, वो भी आएगा हिंदुस्तान में, याद रख लेना, 1 साल के अंदर अंदर। Then we will come to know the real story. उसके बाद जो असली कहानी है वो बाहर आएगी, तब मालूम पड़ेगा कि असल में कौन कौन थे ये लोग जिन्होंने इतने ज्यादा निहत्थे लोगों का कत्लेआम करवाया, और जो आज तक इत्मीनान से जी रहे हैं यहाँ पे। all these so-called intellectuals, all these so-called left-leaning, I hate the word urban naxals, for want of a better word, urban naxals, out to spread chaos over here in India. It won't happen. Let me assure you, it will not happen. और आज चलते चलते एक बार फिर बोल दूं पाकिस्तानियों को, ये मैसेज है साहब, ये मोदी है, याद रख लेना भैया, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है, राजीव गांधी नहीं है, चंद्रशेखर जी नहीं है, मोरारजी देसाई नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है, ये मोदी है। घर में घुस के मारेगा और ऐसे मारेगा कि तुम्हारा घर ही नहीं बचेगा, ये याद रखना। And if you see the kind of things that he's achieved over the past few years, which people thought it's never possible, never possible, he has achieved it. It's going to happen, Pradeep ji. It's and really going to happen. Pakistan is an what do you call? Unfinished business. Unfinished, unsolved mystery. I think probably will be solved by him. ऐसा है सर, 1948 का अनफिनिश्ड बिजनेस जो है, Yes, yes.
जो मेजर जनरल थिमैया ने बोला था मुझे जाने दो पीछे, और उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा, सून टू बी मेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करियप्पा, उन्होंने मना कर दिया था, मतलब उनकी एडवाइस पे पंडित नेहरू ने मना कर दिया था कि आप आगे मत जाइए जनाब. That unfinished business will be completed now. When both POK and Gilgit-Baltistan come over to India, it'll happen. You watch, it'll happen very, very soon, sooner than you expect. And it may not happen by force. There is a possibility it may not happen by military force. It might just happen. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. अगर आपने अभी तक नेशन नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. वो घंटी भी बज गई है जनाब. Please do subscribe to the channel. As Pradeep ji always says, the fastest growing channel in the nation. And it is the fastest growing channel in the nation. And it is the fastest growing channel because we are always on your side. याद रख लीजिए, हम लोग इधर उधर भटकते नहीं हैं, हम लोग हमेशा भारत के साथ हैं. यहाँ पे it is nation first, first, last and always. That's why we are called Nation Now. पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे भारत माता की जय. भारत माता की जय.